ఏఐసీసీ నూతన కార్యాలయం ఇందిరాభవన్ ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. 9A కోట్ల రోడ్లో 6 అంతస్తుల్లో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కాంగ్రెస్ నూతన కార్యాలయాన్ని నిర్మించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ, ఏఐసీసీ చీఫ్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే, అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీతో పాటు తెలంగాణ, కర్ణాటక సీఎంలు రేవంత్ రెడ్డి, సిద్ధరామయ్య పాల్గొన్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. Suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra is problematic. And I put a challenge clearly in front of the Election Commission. And I said clearly to the Election Commission through that meeting that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see the voters, the names of the voters who voted in the Lok Sabha election in Maharashtra, and we want to see the name of the voters who voted, names and addresses of the voters who voted in the Vidhan Sabha election. If they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. But I would like to state to this meeting that the Election Commission has refused to give us that information. Now I want to ask you, why would the Election Commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list of the Maharashtra Lok Sabha and Vidhan Sabha elections? Why will it damage the Election Commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the Election Commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility of the Election Commission to show us exactly why that has happened, and they are refusing to do it. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election system. And we might find it very difficult to accept this, because we are the people who have put in place the election system. But we have to keep it in mind that there is a problem. And it is the duty of the Election Commission to come clean and to give us the data of the Maharashtra and the Haryana elections, to give us the data we are asking for, the opposition is asking for, in which they are refusing to give us. So that is the situation in which we are fighting. Investigative agencies which are supposed to investigate crimes are being used against opposition. They're being used against all opposition leadership. CBI, ED, all these structures. We do not know whether our institutions are working or are non-functional. It's pretty clear the media, what the media is up to. Everybody knows. Even the people know that the media is no longer free and fair. So these are circumstances under which you're fighting this ideological battle. And I must tell you that I'm extremely proud of every single one of you. That you get up in the morning, and you stand and you fight for what you believe in and what you know to be your politics. So I'm very proud of this building, and I'm more proud of the people who are sitting inside this building right now. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपके प्रेरणादायक शब्दों ने नई ऊर्जा को ज़रूर यहाँ पे संचारित किया होगा। मैं अब अनुरोध करूँगा हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वो आएँ और हम सब लोगों को संबोधित करें। खड़गे जी श्री
श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मेरे सहयोगी और साथियों, आज मुख्यालय का उद्घाटन हमारे पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंदिरा गांधी भवन नाम से कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बनना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि ये भवन उसी इलाके में बना है जहां हमारे महान नायकों ने सोचा था 31 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग में ये बात हुई और उसके प्रोसीडिंग से मैं कोट करता हूँ। उन्होंने क्या कहा था? द कमिटी considered the question of the purchase of the site for the AICC office building. It was decided that a site for the AICC office be purchased in the Indraprastha state on the terms offered. यानी उस दिन की आवाज़ थी कि इसी एरिया में कांग्रेस ऑफिस बने और ये निर्णय उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जी के घर में CWC की मीटिंग हुई, उसमें ये उनका इरादा था। तो मुझे खुशी है कि नेहरू जी की ख्वाहिश आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरी की। इस मुख्यालय का शिलान्यास 28 दिसंबर 2009 को कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और उनकी देखरेख में भवन निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। इसीलिए सोनिया जी से हमने अनुरोध किया कि आप उद्घाटन करें और आप यहाँ पधारे। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, आज़ादी की लड़ाई के सबसे कठिन मौके पर 1920 के दशक से 1947 तक कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद में स्वराज भवन था, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था और इसीलिए आज हम इसको इंदिरा गांधी भवन इस नाम से रखें। आज़ादी के बाद मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली आया और 1969 में जंतर मंतर रोड से निकलकर फिर राजेंद्र प्रसाद रोड पर ये रहा और 1978 से अब तक 24 अकबर रोड पर हमारी ऑफिस है। कांग्रेस मुख्यालय कभी भी केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन के समय से ही हमारे प्रगतिशील विचारधारा और विचारों का केंद्र रहा है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस मुख्यालय हमारे देश के लिए एक स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है और इसका हम सभी लोग आदर करते हैं। पंडित नेहरू जी ने कहा था, democracy is not only political, not only economic, but something of the mind, as everything is ultimately something of the mind. These are the words Pandit Jawaharlal Nehru ji said for
डेमोक्रेसी। पहले कांग्रेस मुख्यालय से देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई, फिर राष्ट्र निर्माण का काम हुआ, जिसके लिए गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी समेत कई कांग्रेसजनों को अपनी शहादत देनी पड़ी। कई विभाजनकारी ताकतें जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उन्होंने बाद में संविधान, तिरंगा, अशोक चक्र से लेकर समाज की प्रगति के लिए बन रहे कायदे कानून तक का विरोध किया। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिल के उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आज़ादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूँ, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। अब हमारा ये कांग्रेस मुख्यालय उन शक्तियों से लड़ाई लड़ने का केंद्र बनेगा जो संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जो ऐसे विचार फैला रहे हैं। तो इसको तोड़ में हम लोग इस एक केंद्र का उपयोग करेंगे और आप सभी लोग इसके लिए तैयार है, मुझे आशा है। तो मैं और एक बात आपके सामने रखूंगा कि 28 दिसंबर सन 1885 को WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में पहले अधिवेशन से लेकर अब तक के सभी अध्यक्षों और नायकों को हम याद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सभी संभाला। इसीलिए तो आज हम ये दिन देख रहे हैं और एक के बाद एक उन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया। तो इसीलिए मैं उनको भी नमन करता हूँ, याद करता हूँ। साथियों, 2024 का साल संविधान के स्वीकार करने का 75वां साल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी का साल भी है। गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते आम आदमी, महिलाओं, किसानों, मजदूरों से लेकर देश के हर वर्ग से कांग्रेस से जोड़ा। छुआछूत जैसी सामाजिक समस्याओं को भी राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया था और उन्हीं के वजह से आज
बहुत से गरीब लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। आज़ादी के आंदोलन के कई अहम पड़ाव में कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चले, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन आज इसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश आरएसएस और उनके साथी लोग कर रहे हैं। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात बताई थी, याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। तो ये बात हमको याद रखना चाहिए। जो इतिहास भूल जाते हैं, जो काम कांग्रेस ने किया उसको अगर भूल जाते हैं, जो लोग आज़ादी हमको दिलाई अगर हम भूल जाते हैं, तो आप कोई नया इतिहास बनाने वाले नहीं हैं। तो ये हमने ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने में ही अपना समय बिता रहे हैं। देश के लिए कुछ काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ प्रचार एक ही काम है। इसीलिए उनको भी हम ये कहना चाहते हैं। अपने कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ कि हमें इतिहास याद रखना है और लोगों को भी याद दिलाते रहना है। साथियों, विचारों की ताकत पर कांग्रेस कायम है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू समेत सभी प्रमुख राष्ट्र नायक हमारी विरासत है। कांग्रेस की सत्ता के दौरान देश की तस्वीर बदलने वाले कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुए प्रयासों से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना और अंबेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बना। शास्त्री जी के नेतृत्व में जो जय जवान जय किसान का नारा और जवानों और किसानों के लिए बहुत कुछ उन्होंने काम किया। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नाम पर बना ये भवन मातृ शक्ति का प्रतीक है और ये हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहेगा। उनके कार्यकाल में 10 सूत्री योजना के तहत बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, लैंड रिफॉर्म्स, प्रीवेपर्स खत्म करने का काम और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति उन्होंने लाई और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबों और कमजोर तबकों के लिए साहसिक काम उन्होंने किया। पाकिस्तान को शिकस्त देकर बांग्लादेश को इंदिरा जी ने आज़ाद कराया और मुझे गर्व है कि 1969 में इंदिरा जी के ज़माने में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था और 2022 में मुझे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने चुना। तो 69 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी में मुझे सेवा करने का मौका मिला और आपने जो मुझे अध्यक्ष चुना 2022 में, ये इसका मैं बहुत ही आभारी हूँ और किसी भी शब्द में अगर मैं कहूँगा वो कम गिर जाएंगे शब्द, लेकिन इतना बड़ा एक हम पर
आप सभी लोगों ने जो एक आशीर्वाद किया, इसीलिए आज हम आपके आइडियोलॉजी पे, हमारे आइडियोलॉजी पे हम डटे रहते हैं, डटे रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, आरएसएस के मुख्य हो, होम मिनिस्टर हो। आज जो कांग्रेस के वर्कर को सता रहे हैं और वो अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग उनके बगल में बैठते थे उनकी टीका भी शाह अपने अनेक जगह पे बात करते हैं। एक तरफ उन लोगों की तारीफ भी करते हैं, दूसरे तरफ उनको टोकते भी हैं। तो आज वो लोग भी परेशान है, भाई हमने इनसे तो गले लगा लिया, इन्होंने तो हमको दूर किया। लेकिन आज ऐसा समय है कि हम जो किए हैं उसको लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है। और राजीव जी के समय संचार और सूचना क्रांति, ऑटोमोबाइल क्रांति, ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी के लिए पंचायती राज और 18 साल की उम्र में वोटिंग के अधिकार जैसे ऐतिहासिक काम हुए। ये सब काम हमारे युवाओं को हम बताने की ज़रूरत है। आज जितने भी जो इंजीनियरिंग में इतना कंपटीशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए और कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी कोर्सेस के लिए, वो अगर किसी की देन है तो वो राजीव गांधी जी की देन है। हमको ये याद रखना चाहिए। पीवी नरसिंह राव जी के कार्यकाल में लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा देश को नई दिशा मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण कानून बना। वो सामाजिक सुरक्षा के लिए कई काम हुए जिससे जनता की ताकत बढ़ी। मैं यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस नए मुख्यालय में जो पुस्तकालय है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी होगा। तो हमने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी का नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना है। इसके लिए सबकी सहमति है, ऐसा मैं अपना ये करूँगा। तो ये सूचना भी मुझे हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दी कि ये करना